پاکستان اور ہندوستان کے درمیان کشمیر کا تنازع اگست 1947 میں برطانوی ہندوستان کی دو آزاد ریاستوں پاکستان اور ہندوستان کی تقسیم سے شروع ہوا تھا۔ اس وقت برطانوی زیر تسلط لیکن براہ راست برطانوی حکومت کے زیر اقتدار نہ ہونے والی شاہی ریاستوں نے پاکستان یا ہندوستان میں شامل ہونے کا انتخاب کیا۔ اس وقت جموں کشمیر کے معاملے میں کشمیر کا حکمران ہندو تھا، جبکہ آبادی زیادہ تر مسلمانوں کی تھی۔ ہندوستان نے ہندو حکمران سے الحاق کر لیا۔ جموں کشمیر کے لوگ اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے اور اسے سری نگر سے بھاگنے پر مجبور کر دیا۔ 27 اکتوبر کو حکومت ہند نے اعلان کیا کہ ہندو حکمران نے ہندوستان سے الحاق کر لیا ہے۔ بھارت نے ریاست میں اپنی فوجیں بھیج کر جموں کشمیر کے ایک بڑے حصے پر قبضہ کر لیا۔ وزیر اعظم جواہر لال نہرو اور وائسرائے لارڈ ماؤنٹ بیٹن سمیت ہندوستانی رہنماؤں نے سنجیدگی سے اعلان کیا کہ جموں کشمیر کی حتمی حیثیت کا فیصلہ کشمیر ریاست کی عوام کرے گی۔ نصف صدی سے زائد عرصے سے تنازع کشمیر نے پاکستان اور بھارت کے درمیان تعلقات کو بگاڑ دیا ہے۔ اس مسئلے کے حل کے لیے کثیر الجہتی اور دو طرفہ دونوں سطحوں پر کئی کوششیں کوئی بامعنی نتیجہ دکھانے میں ناکام رہی ہیں۔ ہندوستان اس معاملے کو 1948 میں یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل میں لے گیا۔ یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل نے اپنی سلامتی کونسل کی ریزولوشن نمبر 47، 51، 80 اور 13 اگست 1948 کی یونائٹڈ کمیشن برائے ہندوستان اور پاکستان کی اور 5 جنوری 1949 کو اعلان کیا کہ جموں کشمیر کے ہندوستان یا پاکستان کے ساتھ الحاق کا فیصلہ آزادانہ اور غیر جانبدارانہ رائے شماری کے جمہوری طریقے سے کیا جانا چاہیے۔ اقوام متحدہ کی ان قراردادوں کو ہندوستان اور پاکستان دونوں نے قبول کیا۔ وزیر اعظم نہرو نے ہندوستان پارلیمنٹ کے سامنے اعلان کیا کہ ہندوستان کشمیر میں آزادانہ اور منصفانہ رائے شماری کرانے کے لیے پرعزم ہے۔ تاہم بھارت نے اس موقف کے بہانے سے استصواب رائے کرانے کے اپنے عہد سے مکر گیا۔ تاہم یونائٹڈ نیشن کی سیکیورٹی کونسل کی قرارداد نمبر 91 نے ریاست کے مستقل کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے آئین ساز اسمبلی کے اختیار سے انکار کیا۔ 1951 میں بھارت نے مقبوضہ کشمیر میں دھاندلی زدہ اسمبلی انتخابات کو اقوام متحدہ میں کشمیر کی رائے شماری کے متبادل کے طور پر پیش کیا۔ تاہم اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قرارداد نمبر 91 نے ریاست کے مستقل کے بارے میں فیصلہ کرنے کے لیے آئین ساز اسمبلی کے اختیار سے انکار کیا اور فریقین کو یاد دلایا کہ ریاست جموں کشمیر کا حتمی فیصلہ اس کے مطابق کیا جانا ہے۔ اقوام متحدہ کی قرارداد نمبر 122 نے 1951 کی سابقہ قرارداد کی توثیق کی، جس میں کہا گیا تھا کہ انتخابات رائے شماری کے متبادل کے طور پر نہیں کرائے جا سکتے۔ اب بھارت کا دعویٰ ہے کہ کشمیر بھارت کا حصہ ہے، لیکن یہ اعتراض گمراہ کن اور غلط ہے، کیونکہ جموں کشمیر کے ڈسپیوٹ کو اقوام متحدہ نے تسلیم کیا ہے، جسے ہندوستان اور پاکستان دونوں نے قبول کیا ہے اور عالمی برادری نے اس کی تائید کی ہے۔ جموں کشمیر کے متنازع علاقے میں لائن آف کنٹرول کوئی بین الاقوامی سرحد نہیں ہے اور اسے بھارت نے تسلیم کیا ہے۔ مقبوضہ کشمیر میں بھارتی حکمرانی کے خلاف کشمیری سراپا احتجاج کر رہے ہیں۔ اقوام متحدہ کے باہر پاکستان اور بھارت کے درمیان 1947 میں تنازع کے آغاز سے ہی براہ راست مذاکرات ہوتے رہے ہیں۔ ہونے والے مذاکرات کی کئی دوروں میں کوئی بامعنی یا ٹھوس پیش رفت نہیں ہوئی، کیونکہ بھارت نے اس بات پر اٹل موقف رکھا ہے کہ جموں کو برقرار نہیں رکھا جا سکتا، اسے تبدیل کیا جائے گا۔ 1989 میں جموں کشمیر کے لوگ دنیا کے دیگر حصوں میں آزادی کی تحریکوں سے متاثر ہو کر ہندوستانی قبضے کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے۔ بھارت نے ان کی تحریک آزادی کو طاقت کے بڑے استعمال سے دبانے کی کوشش کی۔ سینکڑوں بے گناہ مردوں، عورتوں اور بچوں کو قتل کیا گیا۔ 1989 سے اب تک 90,000 سے زائد کشمیری مارے جا چکے ہیں۔ انڈین آکوپائڈ کشمیر میں 7 لاکھ سے زیادہ ہندوستانی فوجیں موجود ہیں۔ انسانی حقوق کی خلاف ورزیوں کے بے شمار واقعات سامنے آئے ہیں۔ بھارت سیکیورٹی فورسز کی وحشیانہ جبر کے باوجود کشمیری عوام کی پرامن جدوجہد بلا امتیاز جاری ہے۔ در حقیقت 11 ستمبر کے بعد مقبوضہ کشمیر میں بھارتی ریاستی دہشت گردی میں مزید اضافہ ہو گیا ہے، کیونکہ بھارت نے 11 ستمبر کے واقعات کے بعد عالمی جذبات کو استعمال کرتے ہوئے کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو دہشت گردی سے رنگنے کی کوشش کی ہے اور اس مقامی آزادی کی جدوجہد کو دہشت گردی کے خلاف لڑنے کے ایک ذریعے کے طور پر استعمال کیا ہے۔ پاکستان اور کشمیریوں کی تحریک آزادی کو بدنام کرنے کی کوشش میں بھارت نے پاکستان سے LOC کے پار در انداز اور نام نہاد کراس بارڈر دہشت گردی میں ملوث ہونے کا اپنا پروپیگنڈا تیز کر دیا ہے۔ یہ الزامات انڈین آکوپائڈ کشمیر میں ہندوستانی سیکیورٹی فورسز کے ذریعے انسانی حقوق کے بڑے پیمانے پر خلاف ورزیوں سے توجہ ہٹانے کی ایک چال کے سوا کچھ نہیں ہے۔ اس طرح کے بے بنیاد الزامات لگاتے ہوئے بھارت ان الزامات کی تحقیقات کے لیے کسی غیر جانبدار طریقہ کار کی اجازت دینے سے انکار کرتا ہے۔
तकसीम बरे सगीर के वक्त जम्मू कश्मीर के हुक्मरान राजा हरी सिंह ने पहले तो खुद मुख्तार रहने का फैसला किया, ताहम बाद अज़ां मशरूत तौर पर इंडिया से इल्हाक पर आमादगी जाहिर कर दी। इस सूरत हाल में इंडिया के आइन में शिक 370 को शामिल किया गया, जिसके तहत जम्मू कश्मीर को खसूसी दर्जा और इख्तियारात दिए गए। ताहम रियासत की जानिब से अलहदा आइन का भी मुतालबा किया गया, जिस पर सन 1951 में वहाँ रियासती आइन साज असेंबली के कयाम की इजाज़त भी दे दी गई। इंडियन आइन की शक 370 अबूरी इंतजामी ढांचे के बारे में है और ये दरअसल मरकज और रियासत जम्मू कश्मीर के ताल्लुकात के खदुखाल का तयन करता था। यह आर्टिकल रियासत जम्मू कश्मीर को इंडियन यूनियन में खसूसी नीम खुद मुख्तारी हैसियत देता है और रियासत जम्मू कश्मीर के वजीर आजम शेख अब्दुल्ला और इंडियन वजीर आजम जवाहरलाल नेहरू की उस पर 5 माह की मुशावरत के बाद उसे आइन में शामिल किया गया था। उसके तहत रियासत जम्मू कश्मीर को एक खास मकाम हासिल था और इंडिया के आइन की जो दफात दीगर रियासतों पर लागू होती हैं, उस आर्टिकल के तहत इनका तलाक रियासत जम्मू कश्मीर पर नहीं हो सकता था। उसके तहत रियासत को अपना आइन बनाने, अलग परचम रखने का हक दिया गया था, जबकि इंडिया के सदर के पास रियासत का आइन मुअत्तल करने का हक भी नहीं था। इस आर्टिकल के तहत दिफा, मवासलात और खारजा अमूर के अलावा किसी और मामले में मरकजी हुकूमत या पार्लियामान रियासत में रियासती हुकूमत की तौसीक के बगैर इंडियन कवानीन का इत्तलाक नहीं कर सकती थी। भारतीय आइन के आर्टिकल 360 के तहत वफाकी हुकूमत किसी रियासत में या पूरे मुल्क में मालियाती इमरजेंसी नाफिज कर सकती है। ताहम आर्टिकल 370 के तहत इंडियन हुकूमत को जम्मू कश्मीर में इस इक़दाम की इजाज़त नहीं थी। आर्टिकल 370 के खात्मे के साथ ही सदारती हुक्म के तहत इसमें शामिल किया जाने वाला आर्टिकल 35A भी खत्म हो गया है, जिसके तहत रियासत के बाशिंदों की बतौर मुस्तकिल बाशिंदा पहचान होती थी और उन्हें बतौर मुस्तकिल शहरी खसूसी हकूक मिलते थे। इंडिया के आइन में जम्मू कश्मीर की खसूसी शहरियत के हक से मुतल्लिक दफा 35A का मसला कश्मीर से भी पुराना है। इस कानून के जोर से जम्मू कश्मीर की हदूद से बाहर किसी भी इलाके का शहरी रियासत में गैर मनकूला जायदाद का मालिक नहीं बन सकता था, यहाँ सरकारी नौकरी हासिल नहीं कर सकता था और न कश्मीर में आज़ादाना तौर पर सरमायाकारी कर सकता था। ताहम अब किसी भी इंडियन शहरी को ये तमाम हकूक हासिल होंगे। ये कवानीन डोगरा महाराजा हरी सिंह ने सन 1927 से 1932 के दरमियान मरतब किए थे और उन्हीं कवानीन को सन 1954 में एक सदारती हुक्मनामे के जरिए आइन हिंद में शामिल कर लिया गया था। कश्मीरियों को खदशा है कि आइन हिंद में मौजूद ये हिफाजती दीवार गिरने के नतीजे में वो फलस्तीनियों की तरह बेवतन हो जाएंगे, क्योंकि गैर मुस्लिम आबादकारों की कश्मीर आमद के नतीजे में उनकी जमीनों, वसाइल और रोजगार पर कब्जा हो सकता है। ये खदशा सिर्फ कश्मीर की अलहदगी पसंद हलकों तक महदूद नहीं है, बल्कि हिंद नवाज सियासी हलके भी इस दफा के बचाव में पेश रहे हैं। हालात बज़ाहिर पुरसुकून हैं। आए रोज हड़तालों, पथराव और मुजाहरों का सिलसिला खत्म हो चुका है, क्योंकि अलहदगी पसंद सियासत मंजर से ही हटा दी गई है। इसलिए साल भर तालीमी इदारे और तजारती सरगर्मियां जारी रहती हैं। सियाहों की आमद में मुसलसल इजाफा हो रहा है और खेल कूद की सरगर्मियां भी जारी हैं। हुकूमत के किसी भी फैसले पर किसी तरह का कोई रद्द अमल देखने को नहीं मिलता और सोशल मीडिया से लेकर गली मोहल्लों तक हुकूमत का मुकम्मल कंट्रोल है। सड़कों, पुलों और सुरंगों का काम तेजी से जारी है और इस दौरान इंडिया ने G20 ममालिक के इजलास श्रीनगर में मुनक्किद करके ये दावा किया है कि कश्मीर अब अलहदगी पसंदी और शिदत पसंदी से पाक हो गया है। दफा 370 हटाने के बाद मोदी हुकूमत ने दावा किया था कि जम्मू कश्मीर में बड़े पैमाने पर बैरूनी सरमायाकारी होगी और सिर्फ 6 माह के अंदर 50,000 नौकरियां फराम की जाएंगी और कश्मीरी भी इंडिया के शाना बशाना तरक्की करेंगे। लेकिन तवील कदगनों के बाद जब जिंदगी बहाल हो गई तो सरकारी ताइनातियों से मुतल्लिक एक के बाद एक स्कैंडल सामने आए। हुकूमत को कम से कम ऐसी 4 लिस्ट को कलअदम करना पड़ा, जिनमें बड़े करप्शन, चोर दरवाजे से ताइनाती के इंकशाफात हुए थे। हुकूमत का दावा है कि हजारों करोड़ मालियत के सरमायाकारी मंसूबे हुकूमत को मौसूल हुए हैं और इन पर काम हो रहा है। ताहम जस्टिस मसूदी इससे इत्तफाक नहीं करते। सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात केस के हवाले से इनका कहना था कि हम पुरुम्मीद हैं, लेकिन अगर अदालत में हम हार भी गए, हम सियासी जदोजहद जारी रखेंगे। शुमाल मशरकी रियासतों को जो कुछ मिला है वो सियासी जदोजहद से मिला है, अदालत से नहीं मिला। भारत और पाकिस्तान के ताल्लुकात कशीदगी, तनाज़ात और गहरी दुश्मनी की वजह से खराब हो चुके हैं। इनकी दुश्मनी की तारीख 1947 में ब्रिटिश इंडिया की तकसीम से है, जिसके नतीजे में 2 अलग अलग कौमें हिंदुस्तान और पाकिस्तान की तश्कील हुई। इसके बाद से ये दोनों ममालिक मुतअद्दिद जंगों, इलाकाई तनाज़ात और सियासी तनाज़ात में उलझ चुके हैं, जिसने उनके दरमियान नफरत को हवा दी है। 1947 में ब्रिटिश इंडिया के तकसीम के वक्त बड़े पैमाने पर तशद्दुद, नकल मकानी और फिरकावाराना फसादात हुए थे।
लाखों लोगों को उनके घरों से उखाड़ दिया गया था और उस अरसे में फरका वाराना कशीदगी ने दोनों कौमों के दरमियान दुश्मनी के बीज बोए। एक अलहदा मुस्लिम अक्सरियती मुल्क के तौर पर पाकिस्तान का क़याम हिंदुस्तान से अलग हुआ। कायदे-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की क़यादत में मुस्लिम लीग के मुतालबात का जवाब था। बरे-सगीर की तकसीम तशद्दुद के साथ हुई। हिंदू, मुसलमान और सिख एक दूसरे को इंतकामी कार्रवाइयों और फिरका वाराना तशद्दुद का निशाना बनाते रहे। पाकिस्तान और भारत के दरमियान तनाज़ा को हवा देने वाले अहम मसाइल में से एक मसला कश्मीर के खित्ते का तनाज़ा है। दोनों ममालिक कश्मीर की पूरी सरजमीन पर अपना दावा करते हैं और ये उनकी आज़ादी के बाद से ही तनाज़ात का शिकार रहा है। तकसीम के नतीजे में कश्मीर की तकसीम हुई, जिसके नतीजे में खित्ते की अक्सरियत पर भारत का कंट्रोल था और पाकिस्तान ने एक छोटे से हिस्से को आज़ाद कर लिया। यह तनाज़ा दोनों ममालिक के दरमियान मुतअद्दिद जंगों और झड़पों का बायस बना है। दोनों फरीक एक दूसरे पर इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों और सरहद पार दहशतगर्दी के इल्जामात लगाते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान मजहबी और सकाफती इख्तलाफात भी दुश्मनी के ताल्लुकात में अहम किरदार अदा करते हैं। जहाँ हिंदुस्तान ज्यादातर हिंदू है, पाकिस्तान एक इस्लामी जमहूरिया है। तकसीम बड़े हद तक मजहबी खतूत पर मबनी थी, जिसमें मुसलमानों ने पाकिस्तान की तरफ हिजरत की और हिंदू और सिख हिंदुस्तान चले गए। इन मजहबी इख्तलाफात ने दोनों कौमों की कौमी शनाख्त की तश्कील में अहम किरदार अदा किया है और अक्सर सियासी फायदे के लिए इनका इस्तेहसाल किया जाता रहा है। भारत में हिंदू कौम परस्ती के अरूज और पाकिस्तान में इस्लामी बुनियाद परस्ती के असर और रसूख ने दोनों ममालिक के दरमियान तकसीम को मजीद गहरा कर दिया है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान दोनों के सियासी मंजरनामे ने भी कौमों के दरमियान नफरत को जन्म दिया है। इलाकाई तसल्लुत, कौमी सलामती के मसाइल और मुख्तलिफ खारजा पॉलिसियों के मुकाबले ने दुश्मनी को हवा दी है। भारत पाकिस्तान पर इल्जाम लगाता है कि वो भारतीय सरजमीन पर हमले करने वाली दहशतगर्द तंजीमों की हिमायत और उन्हें पनाह दे रहा है, जबकि पाकिस्तान का दावा है कि भारत इसके अंदरूनी मामलात बिलखसूस बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के सूबों में मुदाखलत कर रहा है। इन इल्जामात और जवाबी इल्जामात ने एतमाद की कमी को जन्म दिया है, जिससे दोनों ममालिक के लिए मुश्तरका बुनियाद तलाश करना और पुरअमन ताल्लुकात कायम करना मुश्किल हो गया है। भारत और पाकिस्तान के दरमियान मुआशी दुश्मनी एक और अंसर है जो उनकी नफरत में शिद्दत पैदा करता है। दोनों ममालिक वसाइल, इलाकाई असर और रसूख और बैनुल अक़वामी मंडियों तक रसाई के लिए मुकाबला करते हैं। माशी तफावत गुज़िश्ता बरसों के दौरान वसी हुआ है। ये माशी तकसीम पहले से कशीदा ताल्लुकात में नाराजगी और हसद की एक और तह का इजाफा करती है। क्या हिंदुस्तान और पाकिस्तान कभी अपने इख्तलाफात दूर करके पुरअमन ताल्लुकात को कायम कर सकते हैं? अगरचे अमन का रास्ता तवील और चैलेंजिंग मालूम हो सकता है, लेकिन ये नामुमकिन नहीं है। दोनों ममालिक को मुखलिसाना बातचीत में शामिल होने, बुनियादी मसाइल हल कराने और बाहमी एतमाद और अफाम व तफहीम की तामीर के लिए काम करने की जरूरत है। बैनुल अक़वामी सालसी भी अमन अमल को सहल बनाने में अहम किरदार अदा कर सकती है। माजी में दोनों ममालिक के दरमियान ताल्लुकात को बेहतर बनाने की कोशिश की गई है। मुख्तलिफ अमन इक़दामात जैसा कि 1991 में लाहौर एलामिया और 2001 में आगरा समिट, जिसका मकसद मुश्तरका बुनियाद तलाश करना और बकाया मसाइल को हल करना था। ताहम ये कोशिशें अक्सर दहशतगर्दी की कार्रवाइयों और सियासी अदम इस्तेकाम और दोनों तरफ की घरेलू दबाव की वजह से पटरी से उतरती रही हैं। भारत पाकिस्तान नफरत एक पेचीदा मसला है, जिसकी गहरी तारीखी, सियासी, मजहबी और सकाफती जड़ें हैं। तकसीम के जख्म, उसके नतीजे में होने वाले तनाज़ात ने ऐसे निशान छोड़े हैं जो अभी तक भर रहे हैं। ताहम ये तस्लीम करना जरूरी है कि अब वक्त आ गया है कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान अपने तलख माजी से हटकर पुरअमन बकाए बाहमी एहतराम और इलाकाई इस्तेहकाम के लिए काम करें। सिर्फ बातचीत, अफाम व तफहीम और समझौते के जरिए ही इन दो कौमों के दरमियान दुश्मनी को दूर किया जा सकता है, जो पूरे खित्ते की रोशन मुस्तकबिल को फरोग दे सकता है। इंडिया दुनिया में सबसे ज्यादा वेपन इम्पोर्ट करने वाला मुल्क है और इसका ज्यादातर असला अमेरिका से आता है। और बिलाशुबा अगर पाकिस्तान और भारत हथियार खरीदते हैं तो एक दूसरे के लिए, और जिस मुल्क का कारोबार इन दो मुल्कों की दुश्मनी पर चल रहा हो, वो क्यों सालसी का किरदार अदा करेगा? यूनाइटेड नेशन की सिक्योरिटी काउंसिल की रेजोल्यूशन में कहा गया है कि जम्मू और कश्मीर का हतमी फैसला कश्मीर अवाम की मर्जी के मुताबिक किया जाना चाहिए। अल्लाह हाफ़िज़।